Good morning, my dear students. Now we are proceeding for exercise 3 as we had already discussed exercise 2. Okay, so now we are here to discuss exercise 3, and exercise 3 we had taken up to question number 30. Student, after my this exercise, if I had solved this number of problem 3, 6, 8, you will able to solve up to question number 30. They are very good questions. Kindly try all these. Okay. So I am giving you an homework. Just after completing this, you have to just solve exercise 3. Okay. Hope after solving all these problems up to question number 30, you don't have any problem. Okay. If any problem persists, you can message in the group. Okay. So see. Now come to exercise number 3. Okay. So see. In exercise number 3, my dear student, first come to question number 3. Okay. Question number 3. Question number 3. Okay. Now what is the question? Question is two plane mirror, each 1.6 meter long, are placed parallel and facing each other at separation of 20√3 centimeter. (20√3 centimeter). Okay, and it is 1.6 meter long. It is 1.6 meter long. It is given to you. Okay, just draw the figure जैसे जैसे आपको दिया हुआ है. ठीक है. Okay, a ray of light is incident at an angle of 30 degree of one mirror at the end of one mirror at an angle of 30 degree. मतलब ये यहाँ सपोज करो ऐसे इंसिडेंट कर रहा है at an angle of 30 degree. 30 degree. Okay. At a point just ठीक है, angle of incidence of 30 degree, the total number of reflection the ray suffers before emerging from the system of mirror. मतलब ये टकराते 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 इधर से निकल जाएगा तो कितने रिफ्लेक्शन हो जाएंगे. ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइजेज में. ठीक है, तो आपको पता है कि ये कुछ ऐसा ही करेगा, ऐसा, और ऐसे करते 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 निकल जाएगा. ठीक है. चलिए, तो हमको क्या करना होता है, आपको पता है कि हमको ये निकालना होता है. अगर ये निकल गया तो पूरे में से डिवाइड कर दीजिए, जितना भी आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन वो करेगा. ठीक है. चलिए, तो ये कितना दिया 20√3, और मुझे अब ये निकालना है x. कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब, यहाँ पे 90 डिग्री है तो हमको ये पता है कि ये 30 डिग्री है. ठीक है, तो हमको पता है क्या, इफ यू सी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री वुड बी नथिंग बट x अपॉन this one 20√3. Okay, and tan 30 degree is what, 1 upon √3, x upon 20√3. This is getting cancelled, then x is equal to 20 centimeter. Okay, so x is equal to 20 centimeter. X is equal to 20 centimeter. लिख लीजिए इसको. ओके. सो अब देखिए, अभी x 20 सेंटीमीटर, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, अब ये 1.6 मीटर है, इसको आप लिख लीजिए 1.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20. दिस इज 1600 और नो आई थिंक 160, सॉरी 160 अपॉन 20. So it is 8. What is the number of reflection? Total number of reflection 8 before coming emerging out. This वो आउट हो जाएगा. ठीक है. So what is the answer given?
Okay. Now if you count this reflection also, इसके बाद कितने होने हैं, मतलब यहाँ तो एक हुआ, अब हम 20 सेंटीमीटर चले तो दूसरा होगा ना, एक 20 में दूसरा, उसके बाद फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे गया। तो ये वाले रिफ्लेक्शन को आप काउंट करना पड़ेगा, दैट वुड बी 8 + 1 दैट इज 9। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इज 8 + 1 दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, कर लीजिए इसको। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन और भी है, मैं देखता हूं, पहले इसको कर लीजिए। इसको आप मेरा बात समझे, पहले 20 सेंटीमीटर में गए तो दो रिफ्लेक्शन हुए ना, एक ये और एक ये, उसके बाद फिर और बढ़े ये 20 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद हम और बढ़े 20 सेंटीमीटर, तो कितना हुआ 3, यानी कि 20 सेंटीमीटर यानी कि एक 20 सेंटीमीटर गए तो दो रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद एक एक होता चला गया। ठीक है ना, तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी सब में हो गया टोटल 8 और एक इसको काउंट कर लीजिए, दैट इज 9, दैट इज, तो आंसर तो ठीक ही है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसलिए हम करा दे रहे हैं, हालांकि वहां लिखा नहीं हुआ है। यहाँ देखिए, 2 plane mirrors A and B are aligned to each other as shown in figure. A light ray is incident at an angle 30 degree at a point just inside one end of A. The plane of incidence coincides with the plane of figure. Is this okay? The maximum number of times the ray undergoes reflection, including the first one. It is written there, including the first one. ओके, कोई बात नहीं, हम इसी में आपको कर देते हैं, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, आप चाहे तो पॉज करके इसको लिख लीजिए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जब नहीं दिया रहे ना इंक्लूडिंग, यानी कि आंसर या तो 8 होता या तो 9 होता, 8 9 दोनों आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, तो 8 अगर दिया हुआ है तो समझ लीजिए पहले रिफ्लेक्शन को छोड़ दिया है, लेकिन अगर 9 दिया हुआ है इसका मतलब पहले रिफ्लेक्शन को काउंट कर लिया है वो। मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, समझे कैसे उसमें अंतर आएगा। केस यही है, मेजरमेंट बदल गए हैं। ये है आपका बेसिकली 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। दिस इज बेसिकली 2√3 मीटर। ओके, दिस इज A, नो सो दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज एट द एंड, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ करते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये है 0.2 और ये है आपका कितना x, इसको मान लीजिए x। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, आप यहाँ करिए tan 30 इज इक्वल टू x अपॉन दिस 0.2। आई थिंक दिस वन इज गिवन ना, हाँ या ओके। सो दिस x इज इक्वल टू व्हाट, ये अब ये कितना, ये है 1/√3 एंड दिस इज x अपॉन 0.2। So this x is equal to what, 0.2 upon √3। ठीक है, अब आपको करना क्या है नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए, यहां आते हैं। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए क्या करिए आप, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए 2√3 आ जाइए, 2√3 और डिवाइडेड बाई 0.2 अपॉन √3। ठीक है, सो इट इज 2√3 अपॉन 1 इंटू √3 बाई 0.2। सो यू कैन सी √3 मिलके आप हो गया 3 इंटू 2 6 अपॉन 0.2 दैट इज 0, और ये 2 से, हाँ ठीक है तो है, हाँ 30 यू कैन सी द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इज 30, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इज 30, बट हियर यू कैन सी द आंसर इज 31। Why? Because one reflection which is not considered, if you do not consider this reflection, answer is 30. If you consider this reflection, answer is 31. इसीलिए मैं बोला कि अगर इस सवाल में आंसर दिया होता और सपोज करिए नहीं दिया होता इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन सपोज, तो 30 और 31 दो आंसर नहीं होंगे वहां पे, या तो 30 होगा या तो 31 होगा, दोनों आंसर सही है। ठीक है, और अगर 30 और 31 दोनों होगा तो ज्यादा सही 31 है, लेकिन अगर 30 भी दिया हुआ है तो वो सही है। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे वेरिएशंस होते हैं, लेकिन जब लिख दिया कि इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन, इट मींस यू हैव टू जस्ट इंक्लूड वन आल्सो, दैट इज 31, बस वही और कुछ नहीं है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। यू कैन राइट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। Okay dear students, so you can see how this problem contains
दिस मच ऑफ वेरिएशन, ठीक है। चलिए इस बातों को इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो आई हैव डिस्कस दिस प्रॉब्लम। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। 6 is what? Okay, it is again this type of question I think we had discussed in the classroom also. Question number 6, ठीक है, कि कितने दूरी पे शीशा रखेंगे जो कि हमको उसका इमेज पूरा का पूरा दिखेगा। आई थिंक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डिस्कस इन आवर लेक्चर, है ना। तो यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन्स आई इज एट अ हाइट, सपोज करो ये पर्सन है और ये उसका आंख है, ये है 1.5 मीटर, ठीक है। He stands in front of a 0.3 meter long plane mirror which is 0.8 meter above the ground. मतलब पॉइंट 8.311 है ना। सपोज 0.8 प्लस 0.3 इज 1.1 ना, या ये यहाँ पे ऐसा है, ये मिरर है, ठीक है, और ये यहाँ से दूरी पे है 0.8 मीटर और ये कितना है 0.3 मीटर। ओके, चलिए बहुत अच्छा। above the ground, okay, the length of the image he sees of himself, लेंथ ऑफ इमेज कितना इसको दिखाई देगा। देखिए सवाल बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा तोप नहीं है सवाल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे इतनी दूरी पे रखा हुआ है, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए आपको याद होगा दोस्तों, आपको याद होगा कि इसका पूरा इमेज देखना है तो इसको मिरर कहाँ पे रखा होना चाहिए। सपोज करिए 1.5 मीटर, आई थिंक दिस कंडीशन आई हैड डिस्कस्ड ऑलरेडी। 1.5 मीटर का अगर ये है तो 0.75 की दूरी पे मिरर होता और 0.75 मीटर, 0.75 मीटर, 75 मीटर का आईना होता तो उसको पूरा का पूरा दिखाई देता। आई थिंक ये चीज हम कर चुके हैं पहले, तब आपको इस बंदे को अपना पूरा इमेज दिखाई देता। मैंने आपको बताया था ना कि ये छोटा मिरर है, आप यहां रखेंगे तो थोड़ा दिखाई देगा, तो आपको लगेगा कि दूर कर देंगे तो पूरा का पूरा इमेज दिखने लगेगा। आंसर है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कंडीशन ये फुलफिल करना चाहिए तभी आपको दिखेगा। तो ओवर होल एंड सोल मतलब ये है कि बेटा जब 0.75 यानी कि जितना बड़ा मिरर होगा ना उतना बड़ा आपको इमेज दिखेगा, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुने। सपोज मिरर ये है, ठीक है, तो ये मिरर रखने का जगह है। सपोज करिए दिस इज x और ये है ऊपर रखने का जगह, मतलब कितना ऊपर ग्राउंड से रखे दैट इज y, ठीक है। इस x में मतलब इसके आधे हिस्से में ये एक बहुत ही खास जगह है, यानी कि इसको पहले दो पार्ट में बांट लीजिए। पूरा देखना होता तो ये 0.75 होना चाहिए और ये 0.75 होना चाहिए था। जितना मिरर होता है उसका दुगुना इमेज दिखता है इसका मिरर, और वो इसमें पुट देखो पूरा देखने के लिए दो कंडीशन चाहिए, एक तो ग्राउंड से कितने ऊपर रखा हुआ है और दूसरा एक ग्राउंड से कितने ऊपर रखा हुआ है और दूसरा मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर भी चाहिए, तभी आप पूरा इमेज देख सकते हो वरना नहीं देख सकते, ठीक है। और एक बात याद रखें और कि इसमें जितना दूर में मिरर रखा गया ना उसका डबल इमेज आपको दिखाई देने वाला है। जैसे जैसे इसके बीच में कितना मिरर रखा हुआ है 0.75, तो इसका डबल कितना होता है 1.5। हाँ आपको पूरा इमेज दिखेगा। अब सपोज करो ऐसा होता, मैं बताऊं, सपोज करो ऐसा होता, ये है 1.5, मेरी बात ध्यान से समझे, और ये मिरर ना कुछ ऐसे रखा हुआ है, मतलब ये है आपका 0.75 और ये है आपका 0.75,
ठीक है। तो अब ये मिरर कितने का है? सपोज कर लीजिए कि ये जो मिरर है, ये मिरर है 0.8 मीटर, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। अब आपको कितना बड़ा इमेज दिखाई देगा? पूरा इमेज दिखाई देगा या नहीं देगा? तो आंसर है, मुझे मतलब है कि मेरा इमेज इस खोखे में हो, इसको खोखा बोलेंगे, ये खोखा 1, ये खोखा 2, ऐसे ही बोलचाल की भाषा में, एक खोखा दूसरा खोखा। इस खोखे में पूरा मिरर भरा होना चाहिए, बाकी नीचे ऊपर हमको कोई लेना देना नहीं है। तो इसको आधे में बांट लिए, ये 0.75 और 0.75, तो आधे जो ये खोखा है, जो जरूरी खोखा है, उसमें पूरा मिरर भरा हुआ है कि नहीं? तो आंसर है हाँ, वो तो भरा हुआ है। तो आपको उसी का डबल दिखाई देगा। अब इसमें कितना मिरर है? 0.75, तो उसका डबल 1.5 ये आपको दिखाई देगा। तो सर ये मिरर क्या करेगा? ये मिरर कुछ नहीं करेगा, आपको इसका जमीन दिखाई देगा, आपको इसका जिस पे खड़ा है वो दिखाई देगा, यानी कि वो फ्लोर दिखाई देगा। सिमिलरली अगर केस ऐसा हो, ये अगर 1.5 मीटर होता और ये ऊपर तक होता ऐसा, बट हमको तो इतना ही मतलब है। सपोज ये है 0.75 और ये है मान लो 0.5 और ये है 0.75, ठीक है। कितना बड़ा मिरर है वो भूल जाओ, इस खोखे में कितना है? इस खोखे में है 0.75 मीटर, तो आपको इसका डबल दिखने वाला है, यानी कि 1.5 मीटर। हाँ ठीक है सर, पूरा इमेज दिखाई देगा। लेकिन सर इसका क्या करें? इसका कुछ नहीं करना है, इससे आपको छत दिखेगा, क्योंकि ये ऊपर है ना, तो आपको छत दिखाई देगा, ठीक है। इससे आपको कुछ नहीं, छत दिखाई देने वाला है, और इससे आपको पूरा का पूरा इमेज दिखाई देने वाला है। आई बात समझ में? तो इस खोखे में जितना मिरर प्रेजेंट होगा ना, आपको उतना ही इमेज दिखेगा, बस इतना ध्यान रखें। यही काम का खोखा है, ठीक है। इतना आपको करना है, इसमें जितना इमेज होगा उसका डबल आएगा। अब सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो 3 एग्जांपल मैंने करा के दिखा दिया। इसमें आपको क्या दिखेगा? सीलिंग, आपको सीलिंग दिखाई देगा, मतलब छत, सीलिंग एंड टोटल इमेज मतलब 1.5 मीटर। इसमें आपको कितना दिखाई देगा? फ्लोर। अब लिखते चले बात को, फ्लोर और टोटल इमेज यानी कि 1.5 मीटर, ठीक है। और इसमें आपको क्या दिखेगा? इसमें दिखेगा कोई फ्लोर नहीं, टोटल इमेज ओनली, ना ही नीचे है ना ही ऊपर है, इमेज ओनली। अगर ये याद रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। 1.5 मीटर मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूं, बट दैट विल टेक सफिशिएंटली लार्ज टाइम। बट ये पोर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी के बेसिस पे हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप, ओके। आई विल जस्ट मेक यू द प्रूफ, इट इज नथिंग एल्स। ओके, तो आप पॉज करके लिख लीजिए इसको। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस, नाउ सपोज करिए ऐसा हो, खोखा पहले बांट लीजिए, और इस खोखे में इतना ही है 0.3, और ये इतना मीटर खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो है ये 0.8 मीटर है, ये 0.8 मीटर है और ये 0.75 है, ठीक है। तो आपको कितना इमेज दिखाई देगा? तो आंसर है, सबसे पहली बात इसमें सफिशिएंट तो है नहीं, पूरा का पूरा भरा हुआ नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गया कि पूरा इमेज आपको दिखाई नहीं देने वाला। दूसरी बात, 0.75 के ऊपर तो रखा हुआ है, लेकिन इतने दूर में कोई मिरर नहीं है और ना ही इतने दूर में कोई मिरर है, तो कितना लेंथ दिखाई देगा? तो इस खोखे में जितना मिरर प्रेजेंट होगा उसका डबल, यानी कि 0.3 इंटू 2 दैट इज 0.6 मीटर। नो फ्लोर नो सीलिंग, कुछ नहीं दिखेगा। आई बात समझ में? सो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। खोखे में कितना है? खोखा कितना कितना बटेगा? आधा आधा, जहां पे आंख है और वो खड़ा है, ठीक है। तो इसको बांट लेना है 0.75 में और ये 0.75 में। तो ऊपर वाले 0.75 में जितना प्रेजेंट होगा उसका डबल, ठीक है। आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, जितना ही प्रेजेंट होगा उसका डबल, और अगर ऊपर है तो सीलिंग और अगर नीचे है तो फ्लोर दिखाई देने वाला है। इसको लिख लीजिए। तो इस केस में आते हैं, अब बताओ आंसर कितना है इसका? तो आप इसको 2 पार्ट में बांट लिए, 0.75 और ये 0.75, इतना आपको सोचना आना चाहिए। और ये तो अब इसके बीच में ये आ गया, ये
ना ही ऊपर है ना ही नीचे है, तो इसका इमेज कितना दिखेगा, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज, इमेज इज नथिंग बट 0.3 इंटू 2 दैट इज 0.6 मीटर। सिंपल, ठीक है, कर लीजिए। और आप चाहोगे तो मैं प्रूफ करके, ये आसान तरीका है जानने का, मैं इसे प्रूफ भी कर देता हूँ। देखिए मैं प्रूफ भी कर दे रहा हूँ थोड़ी देर में, कर लीजिए पहले इसको। चलिए इसका प्रूफ भी देख लीजिए। मैं कई बच्चे बोलेंगे कि सर प्रूफ क्या है इसका, मैं प्रूफ भी दिखाया तो आगे, तो हम इसका प्रूफ भी आपको दिखा देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि सब एग्जामिनेशन में आपको इतना समय नहीं मिलेगा। ये देखिए, वन 1.5 मीटर, चलिए ये ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये x दूरी, a दूरी पे है, तो ठीक a दूरी पे आप इसका इमेज बना लीजिए। ठीक a दूरी पे आप ये बना लीजिए। ठीक, अब आपको करना क्या है, ये इमेज अगर मान लीजिए कि मिरर है चाहे नहीं है, इमेज तो इतना बना होगा आपको दिखाई नहीं देने वाला है। ठीक है, आप देख नहीं सकते उसको। इमेज चाहे आईना इसके नहीं ऊपर है चाहे नहीं है, आपको पता है ये सारी चीज़ें हम लोग पहले बता, लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, इमेज का बनना और इमेज का दिखना दो बातें होती है। ठीक है ना, इसमें आपको पूरा में दिखाई नहीं देने वाला। तो होने क्या वाला है, तो ना ही आपको यहाँ वाला पूरा दिखाई देने वाला है, ठीक है, आपको बेसिकली दिखने वाला है कहीं ना कहीं यहाँ का दिखेगा। मतलब सपोज कर लीजिए कि नहीं ऊपर टच है, तो होने वाला कुछ ऐसा मैं बताऊं आपको। ठीक, यानी कि सपोज कर, क्योंकि यहाँ से जाता तो इस पे टच करता है, ये थोड़ा ऊपर में है, तो आप इसको ये कर लीजिए, ये यहाँ से करते हुए ये यहाँ का, और ये गया आपके आँख में। ठीक है, दूसरा सपोज करिए यहाँ का, ये ठीक, इसका इमेज दिखाई देगा आपको, और ये गया इसके आँख में, ये ऐसा। ठीक है, ये दिखाई देने वाला है, आपको निकालना है ये वाला पोर्शन, दिस वन। ठीक है, तो सपोज दिस इज गिवन टू बी 0.3 मीटर। ओके, और बाकी सब आपको अपने दिमाग से निकालना है, इसीलिए मैं इसको नहीं करा रहा था क्योंकि देखिए ध्यान से, इफ यू सी माई डियर फ्रेंड, दिस इज y, सपोज दिस इज y। ठीक है, मुझे y निकालना है। इफ यू सी माई डियर फ्रेंड, सपोज इफ इट इज o, इफ इट इज a, देन दिस इज i, दिस इज a डैश। आप जरा गौर से देखिए, सपोज दिस पॉइंट इज p एंड दिस पॉइंट इज q। ओके, नाउ आप गौर से ऑब्जर्व कीजिए, ये और ये वो सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये एंगल तो कॉमन हो गया, और ये एंगल बराबर ये एंगल, और अरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भाई साहब, और ये एंगल बराबर ये एंगल, पैरेलल है ना। तो ट्रायंगल ये और ये क्या है, सपोज दिस इज p डैश, सपोज दिस इज आप कह सकते हो q डैश। ठीक है ना, मतलब ट्रायंगल, देखिए ये रे ऑप्टिक्स है, फिगर बनने के बाद समझ में नहीं आने वाला, बनते बनते समझ में आएगा। ठीक है, सो ट्रायंगल a p q इज सिमिलर टू ट्रायंगल a p डैश q डैश। ठीक है ना, कौन सा सिमिलरिटी, a सिमिलरिटी लगा दो, चलो ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो कैसे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे कैसे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे वो प्रोपोर्शनेट होंगे। तो कहने का मतलब है इस ट्रायंगल का हाइट कितना है a, और इस पूरे ट्रायंगल का हाइट कितना है, दिस अपॉन दिस, यानी कि दिस अपॉन दिस। सो इसका हाइट कितना है, हाइट इसका इतना ही है ना, हाइट हो गया इसका a। यानी कि मैं बताऊं आपको, हाइट का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। हाइट ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन हाइट ऑफ ट्रायंगल
ए पी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू 0.3 अपॉन वाई। ओके, और ये हाइट आपको पता है, ये ए है और ये 2a है। देखो ये ए है और ये कितना है 2a, दैट इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल। अरे मेरे भाई, अगर ट्रायंगल ऐसा आरा तिरछा आया तो इसका हाइट नहीं हुआ क्या? होगा ना, एच हाइट ये वाला, ठीक है। तो इसका हाइट हो गया a और इसका हाइट हो गया 2a, दैट इज 0.3 अपॉन वाई, कट गया तो y इज इक्वल टू 0.6 मीटर। सिंपल, बट ठीक है, इतना कर लिए अच्छी बात है। नहीं भी करते तो हमको उस कंसेप्ट से पूरा आंसर पता है, ठीक है, कर लीजिए इसको। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे सवाल है ये। सो इसका ऑप्शन था आई थिंक 3 का पहला, ठीक है, और 6 का देखें, 6 का 4th, तो राइट इट डाउन 4th। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। ये भी कराया हुआ है बाप बेटे वाला सवाल, जिसमें कि मैंने प्रॉब्लम्स का वीडियो भी बनाया था कि कुछ बच्चे को प्रॉब्लम हुआ था तो हम प्रॉब्लम भी बताए थे। चलिए आप पॉज करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन ऑफ हाइट 1.8 मीटर है, वो छूट गया है, चलिए 1.8 मीटर, ठीक है, पर्सन है, सेंटर ऑफ द रूम में है और यहाँ पे इसका एक वॉल है 10 मीटर, ठीक है, और जब सेंटर पे है तो यहाँ पे इस दीवार पे मिरर है, इस दीवार में मिरर है, ठीक है। ये सवाल कराया जा चुका है, ये 10 मीटर का है, ठीक है। विशेष टू सी द फुल इमेज ऑफ द बैक वॉल, ये चाहता है बेचारा कि पीछे वाला वॉल का पूरा इमेज दिखाई दे यहाँ पे, ठीक है। इसमें 10 मीटर, विशेष टू सी द फुल इमेज ऑफ द बैक वॉल इन द मिरर फिक्स्ड ऑन द फ्रंट वॉल, फिक्स्ड ऑन द फ्रंट वॉल, दिस इज द फ्रंट वॉल, दिस इज द बैक वॉल, द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर नीडेड फॉर दिस पर्पस। आपको अपना बाप बेटे वाला प्रॉब्लम कराए थे, वो देखिएगा, और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था तो फिर से प्रॉब्लम का भी वीडियो बनाए थे हम, ठीक है। तो चाहे वो प्रॉब्लम वाला वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें बाप का हाइट h था तो मिनिमम जो चाहिए था मिरर, ठीक है, वो h/3 पे पुट होना चाहिए और h/3 का मिरर भी होना चाहिए। मतलब ये जो रखा हुआ पोर्शन है ये होना चाहिए h/3, ये होना चाहिए h/3 और यहाँ से तो भी h/3 होगा, ठीक है। तो जब ये h था तो आंसर था h/3, यहाँ 10 है तो आंसर कितना होगा 10/3। सो द आंसर वुड बी 10/3 एंड आप देख सकते हैं वो वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। सो द आंसर वुड बी 3। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है। खेलना आना चाहिए रे ऑप्टिक्स में, लाइट से खेलना आना चाहिए। हालांकि इतना आसान बात नहीं है लाइट से खेलना, बट लाइट से खेलना आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इफ यू सी इट इज 2 मिरर्स like this, figure is given to you and it is given that कि object O is in between them or then the distance of the first 3 image from the mirror M2 will be in centimeter. Suppose it is given to be 5 centimeter और ये ऑब्जेक्ट जो है वो बीच में है, तो ये कितना दूरी हो गया 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ दिस इज M2 एंड दिस इज M1। कोई बात नहीं दोस्तों, क्रॉस मेथड हमको आता है M1 और M2, ठीक है। यहाँ 5 सेंटीमीटर पे 5 सेंटीमीटर और 10 जोड़ते जाना है, 15 15 25 25 इस तरीके से। तो पहला 3 इमेज जानना है आपको, तो पहला 3 इमेज होगा 1 2 3, सो बनेगा 5 पे 15 पे और 25 पे, ये 3 इमेज बनेंगे। पहला 3 इमेज जो होगा M2 से वो यही होगा, ठीक है।
सो आंसर इज फोर्थ, नॉट थर्ड। थर्ड इज गिवन रॉन्ग इन द आंसर, ठीक है ना, उसको सही कर लीजिए। इट्स आंसर इज फोर्थ, फोर्थ, ठीक है, सही कर लीजिए इसको। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 या ओके, अच्छा चलिए 13 एक नया टाइप का सवाल है, ये आपको मैं बता देता हूँ कैसे करना है। ये भी बड़ा ही आसान सवाल है, बट थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 क्या है कि एन अननंबर्ड वॉल क्लॉक, अननंबर्ड, इसमें नंबर नहीं दिया हुआ है, 4:25:37 हो रहा है, यानी कि 4 बज के, ये घड़ी है जिसपे 4 बज रहे हैं, मतलब समझ लीजिए ये 4 है और नंबर नहीं दिया हुआ है, ये 4:37। तो 37 तो 35 यहाँ होता है, मान लीजिए ये 30 होगा, ये 12 होगा और ये 6 होगा और यहाँ 7 होगा, तो 35 और बज के 37 हो रहा है। तो 37 तो सेकेंड का सुई यहाँ होगा कहीं ना कहीं, 1 2 यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को देखा जाए कि 37 हो रहा है, वेयर फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट्स आवर, सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट्स मिनट, या एंड द लास्ट टर्म रिप्रेजेंट्स सेकेंड, तो सेकेंड का सुई है, ठीक है। चलिए, व्हाट टाइम विल इमेज इन प्लेन मिरर विल शो, अब आपको प्लेन मिरर में इमेज देखना है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए एग्जाम में, इसको अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। कुछ नहीं करें, आप एक पेज ले और एक पेज पे बनाए वो, ये जो इमेज है वो आप पेज पे बनाएं। जब आप पेज पे बनाएंगे ये चीज़, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये ऐसा, ये 12 और ये 6, ये 12 और ये 6, तो यहाँ पे ये है ऐसा, यानी कि 4 पे, और ये है ऐसा 37 पे, ठीक है। ये है 4 पे और ये है 37 पे। आप क्या करें कि इसको पीछे पलट के देखें ऐसे, ये आपको क्या नजर आएगा। सो जब आप पीछे देखोगे तो इट विल अपीयर टू बी, ये तकरीबन आप देखोगे ये 4:37, ये ऐसा, यू कैन सी हियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपको कितना नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है, ये 8 या 7 के बीच में होगा, ऐसा ही कुछ होगा, यानी कि 6 7 8, मतलब ये घड़ी अगर ऐसे चलेगा तो 7 से 8 की तरफ जाएगा, मतलब ये घड़ी 7 पे है, तो 7:25 के आसपास कुछ ना कुछ हो रहा है ये, ठीक है। तो आप आंसर्स में देखिए, या ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये कुछ ना कुछ, ये 6 है, ये 6 के बाद इधर चलेगा ना, इधर 6 होगा, इधर 7 होगा, इधर कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, तो 7 है और इसके बीच में, यानी कि 6 और 7 के बीच में, यानी कि 7:34 या 35 के आसपास कुछ ना कुछ हो रहा है। और 37 है, मतलब जैसे देखें 7 के थोड़ा अंदर है, यहाँ देखें 6, ये 6 और 7 के यहाँ थोड़ा बाद होगा, तो यहाँ पे ये 7 के थोड़ा पहले आएगा। देखिए मेरी बात, ये है आपको 35, 7 6 और 7, यहाँ देखें, जब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे है, मतलब यहाँ ये आने वाला है, मतलब 35 पे ये आने वाला है, 7 पे ये आने वाला है, मतलब 7 के पहले है, मतलब 35 से पहले होगा। तो 35 से पहले वाला आंसर ढूंढे आप, इसमें आंसर ढूंढेंगे तो 8:35 7:35 7:34, यस 7:34, 7:34 इज द आंसर, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लॉजिकली देखेंगे, सो इट्स ऑप्शन वुड बी 3, ठीक है। अब एक काम करें, खुद से ले पेपर, देखिए खुद से आपको देखने वाला है, आप खुद से ले एक पेपर और उस पर क्लॉक का डिजाइनिंग आपको पता है, आप उसको बना लीजिए और उसको पीछे पलट के देखिए, यू विल गेट द मिरर इमेज, लैटरली इन्वर्टेड इमेज आपको उसके पीछे दिखाई देगा। तो उसको आप सॉल्व करें, आपको समझ में आ जाएगा सारी बातें, ठीक है। तो अब देखिए नहीं आता है तो फिर मुझे बताइएगा, मैं सिखा दूंगा उसे, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। तो इसका आंसर हो गया दिस। सो दिस 2 क्वेश्चंस आर ओवर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। कम टू क्वेश्चन नंबर 18। सो 18 में देखेंगे, अच्छा हाँ 18 बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 18 इंपॉर्टेंट इस तरीके से मैं बताऊं, द मैग्निफिकेंट 18 या 18 ओके।
द मैग्निफिकेशन m, द इमेज पोजिशन v एंड द फोकल लेंथ f आर रिलेटेड टू वन अनदर बाई रिलेशन। किस रिलेशन से ये फुलफिल हो रहा है? देखिए मैं रिलेशन प्रूफ कर दे रहा हूँ, आने वाले समय में आपको याद रखना पड़ेगा इसको कि m इज इक्वल टू क्या होता है। m इज इक्वल टू v अपॉन u होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको, ठीक है। और आपको पूछ रहा है कि जैसे हमको रिलेशन चाहिए m, v और f में, मुझे यही चाहिए, मुझे u नहीं चाहिए। तो मुझे u को किस टर्म में लिख लेना चाहिए? मुझे u को लिख लेना चाहिए v और f के टर्म में, ठीक है। मुझे m चाहिए, v चाहिए, u नहीं चाहिए। तो राइट u इन टर्म्स ऑफ f। तो व्हाट यू शुड राइट? सपोज हम ये है कौन सा फॉर्मूला, ये होता है लेंस के लिए। तो लेंस के लिए अगर हम करते हैं तो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मुझे u नहीं चाहिए, तो 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। आप इसको इधर लेके जाएं, इसको इधर लेके आए, ठीक है। सो यू विल गेट 1/u इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f अपॉन vf, ठीक है। तो u क्या हो जाएगा? u हो जाएगा vf अपॉन f माइनस v। जस्ट पुट दिस हेयर, m इज इक्वल टू v अपॉन vf अपॉन f माइनस v। सो इट वुड बी v इंटू f माइनस v अपॉन vf। सो v और v गेटिंग कैंसिल्ड, सो m का एक रिलेशन आता है f माइनस v अपॉन f, ये ठीक है। अच्छा ये तो हो गया किसके लिए? लेंस के लिए। अगर हम मिरर के लिए देखें तो क्या होगा, देखिए मैं बताऊं। मिरर के लिए होता है m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। और u को हम अगर f के टर्म में लिखना चाहते हैं तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/v। सो यू विल गेट v माइनस f अपॉन vf, ठीक है, 1/u। तो u इज इक्वल टू हो गया vf अपॉन v माइनस f। ओके, सो यहाँ पुट कर दीजिए माइनस v इंटू, मैं ऊपर ले रहा हूँ डायरेक्ट, v माइनस f अपॉन vf, ठीक है। यहाँ से ये काट दीजिए और ये हो जाएगा। अच्छा माइनस अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? f माइनस v अपॉन f। देखिए दोनों के लिए सही फॉर्मूला है, चाहे वो लेंस का हो चाहे वो मिरर का हो, ठीक है ना। चाहे वो लेंस का हो चाहे वो मिरर का हो, m, v और f का रिलेशन ये याद रखना होगा आपको कि m इज इक्वल टू नथिंग बट f माइनस v अपॉन f। इज दिस ओके? ये याद रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन में फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस अगर दिया हुआ है तो उससे मैग्निफिकेशन निकालना है तो दिस इज द वेरी वेल फॉर्मूला। आराम से आप निकालो, रखो और स्मूथली निकाल के आंसर कर दो, पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। सो इट्स आंसर वुड बी फर्स्ट, ठीक है। ये सब नई नई बातें आपको बताया जाएगा। तो आप बोलोगे सर m, v और u का भी कोई फॉर्मूला है क्या? आंसर है हाँ, वो भी है, मैं वो भी बताता हूँ, समझे। इसके अगले क्वेश्चन में वही, इसको पहले कर ले पॉज करके। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। अब आपको इसमें रिलेशन किसमें चाहिए? द रिलेशन बिटवीन मैग्निफिकेशन m, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड द फोकल लेंथ f। ज़्यादातर केसेस में यही दिया रहता है, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि आपको रिलेशन चाहिए m और u में, ठीक है। अब ये मिरर के केस में चाहिए तो आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? वही m इज इक्वल टू होता है माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। अब मुझे v नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए? v नहीं चाहिए। तो v नहीं चाहिए तो इस केस में हम यहीं पे कर देते हैं। तो v की जगह क्या पुट कर देंगे? 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, 1/v इज इक्वल टू fu इंटू u माइनस f। सो v इज इक्वल टू, मैं यहाँ पुट कर दूँ, m इज इक्वल टू, कॉर्ड ले आओ, एक्सटेंशन कॉर्ड चार्जर लगा के इसमें लगाओ तो। सो m इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन u और इंटू v की जगह क्या लिखेंगे? fu अपॉन u माइनस f। सो यू विल गेट u गेटिंग कैंसिल एंड m वुड बी इक्वल टू f और ये माइनस यहाँ ठोक दीजिए f माइनस u। सो आंसर वुड बी f अपॉन f माइनस u। सो आंसर इज 2,
ठीक है, अब यही केस हम लेंस के लिए भी देखेंगे। पहले रुक जाइए, पहले इसको कर लीजिए आप अच्छे से। ये किसके लिए है? मिरर के लिए। ये किसके लिए आया? मिरर के लिए। अब लेंस के लिए देखते हैं सेम है कि क्या है। पहले इसको कर लीजिए। ये फॉर्मूला बड़ा ही फेमस है, इसको याद रख लीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए। ओके, चलिए अब हम लेंस के लिए देखते हैं। लेंस के लिए देखते हैं, तो लेंस के लिए क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो मुझे v नहीं चाहिए, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v क्या हो गया? 1/v हो गया 1/f प्लस 1/u। सो इट इज हो गया uf और ये हो गया u प्लस f। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? m इज इक्वल टू 1/u, ठीक है, इंटू uf। ओके, सो सी नाउ, तो इससे हमको ये समझ में आया कि इस केस में यानी कि रिलेशन बिटवीन m, f एंड u में दोनों अलग अलग आएगा। मिरर के केस में ये आता है और लेंस के केस में ये आता है। आप देख सकते हैं सारा कुछ वेरिएशंस कैसे कैसे क्या है। ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ इसे एक जगह पे। रिलेशन बिटवीन m, v एंड f। ठीक है, इस केस में लेंस और मिरर। ठीक है, लेंस के केस में कितना आएगा? m इज इक्वल टू f माइनस वी अपॉन एफ, f माइनस वी अपॉन एफ, और इस केस में भी f माइनस वी अपॉन एफ। ठीक है, नाउ रिलेशन बिटवीन m, f एंड u में मिरर। मिरर के केस में कितना आएगा? f अपॉन f माइनस u, और लेंस के केस में क्या आएगा? m f अपॉन f प्लस u। सिंपल, इसको लिख लीजिए। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ओवर। अब यहाँ देख लीजिए किसके बारे में पूछ रहा था। इसके बारे में पूछ रहा था आपको 2 में, सो इट्स ऑप्शन इज 2। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 19। ओके, okay, now this question नंबर 15। ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा। Okay, my dear student, come to question number 15. Now, if you see question number 15, it is आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, है ना। 15 कहता है कि an infinitely long rod lies along the axis of a concave mirror of focal length f. The near end of the rod is at a distance u from the mirror. Its image will have a length. Image के पास कितना लेंथ होगा? सबसे पहले तो ये बना लीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत इमेजिनेशन भी होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए और थोड़ा लॉजिक भी होना चाहिए। दिस इज O, सॉरी दिस इज P, पोल। सो सपोज दिस इज S एंड सपोज दिस इज 2F। ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पे है ये रॉड ना, कहीं ना कहीं यहाँ पे U इज ग्रेटर देन F है, तो ग्रेटर देन F यहाँ भी हो सकता है, चाहे वो यहाँ भी हो सकता है। उससे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा आपको तो समझना ही है कि नियर पॉइंट जो है, ये रॉड कुछ ऐसा है, ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है, बहुत इन्फिनिटी तक, यानी कि इसका जो दूसरा एंड है वो बहुत दूर पे है, ये बहुत दूर पे है। मतलब इस एंड का दूरी तो है यहाँ से, नियर पॉइंट तो यू पे है, ठीक है, और इसका जो दूरी है ये इन्फिनिटी पे है।
ये इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो इन्फिनिटी पे जो इमेज होता है वो तो बनता है फोकस पे, तो आप तो सबसे पहले इसका तो बना दीजिए नहीं कि ये इसका इमेज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ही बनेगा। बी डैश तो यहाँ होगा, ए डैश कहाँ होगा निकालना पड़ेगा, बट बी डैश तो यहीं पे होगा, ठीक है, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे है। अब बनाइए इसका यू का वी कितना होगा, तो 1/v प्लस 1/-u इज इक्वल टू -1/f, इसका फोकल लेंथ f है, तो इसमें कितना निकल जाएगा 1/v निकलेगा 1/f, और ये -1/f है, -1/f प्लस 1/u, सो यू विल गेट 1/v इज इक्वल टू uf, ठीक है, और माइनस u माइनस f, यू विल गेट लाइक दिस। आप करके देख लीजिए, कैलकुलेशन आपका हमसे अच्छा है तो आप करके देख सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट वेयर इज v, सो v इज -u/f अपॉन u माइनस f, ये ऐसा, मतलब कि मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ लिया है तो कहीं ना कहीं लेंथ यहाँ पे होगा, a यहाँ पे होगा, क्योंकि हमको पता है कि 2f के पहले अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज इसके बीच में बनता है, f और 2f के बीच में, मतलब सपोज इफ इट इज b डैश देन दिस मस्ट बी a डैश, और ये मान लीजिए है v डैश, ये है v, मतलब मान लीजिए इसका v इमेज डिस्टेंस a डैश का ये है, ठीक है, और आपको पूछा गया इसका लेंथ l i सपोज कर लीजिए, ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो जितना v होगा उसमें से अगर हम ये घटा दें f, तो क्या आपको इतना लेंथ नहीं निकल जाएगा, बोलिए, बस यही बुद्धि लगाना था इसमें यही था कि इसका इन्फिनिटी का इमेज f पे बनेगा, इसका इमेज यहाँ बना लीजिए, उसको इस पूरे में से इसको घटा लीजिए, यू विल गेट द आंसर। और देखिए मैं बताता हूँ, सो li वुड बी नथिंग बट v डैश माइनस f, सॉरी v माइनस f, तो v कितना है, v आया है आपका uf, एक मिनट, ये माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है कि इस साइड में है, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है कि इसमें से बस इसको घटाना है हमको, तो मैग्नीट्यूड वा कितना है इसका, मैग्नीट्यूड तो इतना ही है, तो मैग्नीट्यूड ले लीजिए uf अपॉन u माइनस f अपॉन s, यू विल गेट uf अपॉन u माइनस f माइनस uf एलसीएम लेके और प्लस f स्क्वायर, सो यू विल गेट uf से uf कैंसिल हो गया एंड यू विल गेट li टू बी f स्क्वायर अपॉन u माइनस f। तो बड़ा ही लॉजिकल सवाल है ये, ठीक है, इसलिए अच्छे से इसको आप 1-2 बार बनाइए, यू विल गेट द कंसेप्ट। सो इसका आंसर 1, ठीक है, कर लीजिए इसको जल्दी जल्दी। आप पॉज करके लिख लीजिए इसको। ओके, नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए दोस्तों 22 में एक अलग कंसेप्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इसमें एक चीज आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक मीडियम है 1 और दूसरा मीडियम है 1, दूसरा मीडियम है 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और इसका भी म्यू है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे दिए 30 डिग्री पे, तो यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन एंगल क्या होगा r, तो आपको सिंपल सी बात पता है स्नेल्स लॉ से, साइन 30 डिग्री यानी कि म्यू इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन r, ठीक है, तो म्यू म्यू कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बराबर यानी कि r बराबर 30 डिग्री, मतलब ये भी 30 डिग्री, मतलब रेज में कोई डेविएशन नहीं आ रहा है, रेज में कोई डेविएशन नहीं आ रहा है, तो आप इसको आइडेंटिफाई थोड़ी ना कर पाओगे कि ये मीडियम है। मान लेते हैं कि ये कुछ अलग टाइप में बना हुआ है, ये सॉलिड फॉर्म में है और ये मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो ये चीज़ अगर यहाँ रख दिया जाए तो आप थोड़ी ना आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वहाँ क्या है, क्योंकि रेज मुड़ते हैं तब हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ एयर है, अब एयर पार्टिकल में उसी एयर को फिर से हम देखना चाहते हैं तो कैसे देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर इसी बीच में अगर एयर का डेंसिटी थोड़ा कम हो जाए तो हमको वो एयर दिखने लगेगा। जैसे मैं बताऊं, आप देखते हो आग जहाँ जलता है, जहाँ भट्टी वगैरह जलता है, गैस चूल्हा वगैरह जलता है, वहाँ पे देखोगे कुछ पानी की तरह दिखेगा आपको, तो यू कैन ऑब्जर्व दैट थिंग, और आपको दिखाई, हाँ पता चल रहा है कि हाँ वहाँ कुछ हो रहा है। तो कुछ होना तभी पता चलेगा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो आपको ऑब्जेक्ट पता नहीं लगे, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट कि कौन सा ऑब्जेक्ट अलग है और कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब
है ना। दोनों ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट आप तभी कर पाते हो जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो एक नोट लिख ले, यहाँ पे नोट लिख ले, फिर सवाल देखेंगे नोट में कि इफ टू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इज ओनली डिफरेंशिएबल मतलब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों को कि दोनों अलग अलग है। ओनली डिफरेंशिएबल व्हेन देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर डिफरेंट। जब डिफरेंट होगा तभी आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, वरना उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो ये लॉजिक आप याद रखें। सपोज करिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो कुछ और ऐसा सॉलिड ले आए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, आप यहाँ पे लेके आ जाओ, आप उसको नहीं दिखा पाओगे। आप अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप अपने आप को ट्रांसपेरेंट कर लीजिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 कर लीजिए, आप नहीं दिखाई देंगे एयर में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। एंड फ्रॉम दैट लॉजिक अब आप देखिए, immiscible transparent liquids A, B, C, D and E are placed in a rectangular container of glass with liquids making layers according to the densities. The refractive index of the liquids are shown in the adjoining diagram. Okay, the container is illuminated from a side and a small piece of glass having refractive index 1.61 is gently dropped into the liquid also. The glass piece descends downward and will not visible in, किस में विजिबल नहीं होगा, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके बराबर होगा तो वो C में विजिबल नहीं होगा। एंड द आंसर इज 2, लॉजिकल आंसर है ये। सो इट्स आंसर इज 2, इट्स आंसर इज 2। ओके, कर लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको, कर लीजिए। Okay, so this is over. Now student come to question number 23. 23 भी सिंपल सवाल है, वैसे आप जानते हो ये सारी चीज़ें, फिर भी बता देते हैं। ये रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस का क्वेश्चन है। देखिए, अ बर्ड इन एयर लुक्स एट अ फिश वर्टिकली बिलो। एक बर्ड है, वो तो हवा में ही चलता है, और ये पानी है, ये फिश है, ये फिश है। ठीक, अ बर्ड इन एयर लुक्स एट अ फिश वर्टिकली बिलो इट एंड इनसाइड वाटर। एक्स इज द हाइट ऑफ बर्ड एबव द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब दिस इज एक्स, और ये देख रहा है, ये देख रहा है। ठीक है, एंड वाई इज द डेप्थ ऑफ फिश बिलो द सरफेस, ये वाई है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द फिश एज ऑब्जर्व बाई द बर्ड। ऑब्जर्वर ये है, यानी कि देख रहा है, यही ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का म्यू है। कोई बात नहीं, आंसर सिंपल है यार। अगर डेंसर मीडियम में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो और उसको रेयर मीडियम से देखा जा रहा हो तो वो उसको कुछ ऊपर नजर आता है। सिक्का पानी में रखा हुआ है तो ऊपर नजर आता है, आपको पता है ये चीज। तो ये थोड़ा ना थोड़ा ऊपर नजर आएगा। ठीक है, और ये कितना होगा, दिस इज अपरेंट डेप्थ, और ये कितना होता है आपको पता है, y डिवाइडेड बाई म्यू। ठीक है, तो इसको कितनी दूरी पर नजर आएगा, ये x और प्लस y बाई म्यू। सो ऑब्जर्वर सी एट x प्लस y बाई म्यू, दिस इज द आंसर। सिंपल। ठीक है, और इसके बारे में हम PhD करवा चुके हैं आपको, इसलिए परेशान ना हो। सो या ओके, 23। ठीक है, मैंने 25 नहीं लिखा है। ओके, 25 भी मुझे बताना चाहिए। अब इसको लिख लीजिए।
चलिए तो इसको रहने देते हैं हम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 23 तो हो गया, 23 का ऑप्शन है इसका 2, ठीक है। हम ना 25 भी आपको बताए थे, 25 में कुछ करेक्शन कर लीजिए। एक्चुअली इसमें ना 25 में ऑप्शन 3 और 4 नहीं देके वो 3 ही दे दिया है, बट वो 3 वाला 4 होगा। आंसर वुड भी ये 1/1/μ4। मतलब देखो मैं बताऊँ, इसमें आंसर, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि μ2 यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो बराबर है, यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात बराबर। रिप्रेजेंटेशन का अपना अपना तरीका है। 3 और 2 इंटू μ4 और 3, ठीक है। तो μ2/1 का मतलब होता है μ2/μ1, μ3/μ2 और इंटू μ4/μ3। तो इफ़ यू सी इट इज़ गेटिंग कैंसिल और बचा आपको μ4/μ1। और इसको लिख सकते हैं कैसे, ऐसे, ठीक है। और या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं μ14, वो बदल जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर वुड बी 3, ठीक है। और उसको करेक्ट कर लीजिए। तो 25 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 ओके। ठीक है, चलिए आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। हालांकि 28 बताना नहीं चाहिए मुझे, बट फिर भी देख लीजिए, क्योंकि 28 तो बहुत लोगों को तो पता ही होगा। अ प्लेन ग्लास मिरर इज केप्ट ओवर अ वेरियस कलर्ड लेटर। बहुत सारे लेटर के ऊपर रखा गया हुआ है ये, ठीक है। और ये ग्लास है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मान लीजिए इसका म्यू है जनरल, लेकिन इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको पता है सबका कलर के लिए अलग अलग होगा। म्यू वायलेट सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद सबसे कम होगा, नहीं, हाँ ठीक तो है, ये है ना। तो ये कहानी, और यहाँ से आप ऊपर देखोगे, ठीक है। तो आपको अ लेटर विच अपीयर्स लीस्ट रेज, सबसे कम कौन रेज हुआ है, ठीक है ना। जब ऊपर से देखोगे तो जो अपरेंट डेप्थ का होता है, अपरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ अपॉन म्यू, ठीक है ना। तो सबसे कम कौन उठेगा, मेरी बात ध्यान से सुने। A plain glass is kept over a various colored letters. The letter which appears least raised. हाँ ठीक तो है, सही तो है। देखो मतलब कहने का मतलब है, देखो ऐसे इसका जो लाइट होगा, जो भी लाइट आएगा, ये मान लो, ठीक है। तो लीस्ट रेज तो यही वाला लाइट है ना, ये वाला, यानी कि ये DA। तो जिसका DA सबसे ज़्यादा है वो सबसे कम रेज हुआ है। बाकी देखो ना, ये तो ज़्यादा रेज हुआ ना, ये ज़्यादा रेज हुआ ना, रेज पूछ रहा है ये। तो ये DA जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे कम रेज होगा। तो DA सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो ये सबसे ज़्यादा उसका होगा जिसका ये सबसे छोटा होगा। तो कौन है सबसे छोटा, म्यू सबसे छोटा कौन है, रेड। तो रेड कलर वाला लीस्ट रेज दिखाई देगा। दैट इज वाई द आंसर इज 4। आई थिंक द लॉजिक इज कंप्लीटली क्लियर टू यू, ठीक है। लिख लीजिए। Okay, so I think all the questions are clear to you. These are very good questions. मीन्स अगर लाइट पढ़ रहे हो तो ये सब नहीं पढ़े तो मजा ही नहीं है फिर तो। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हल, ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 29। 29 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, नो डाउट, ठीक है। मैं बता देता हूँ इस सवाल को आप 2-3 बार खुद से भी ट्राई करें। जैसे मैं बताऊँ आपको, इस क्वेश्चन में क्या है कि बेसिकली एक ये रॉड दिया हुआ है जिसका हाइट h है, और ये बंदा यहाँ से देख रहा है, मतलब इसको ये दिखाई दे रहा है लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, जब इसमें कुछ भी नहीं है तो, ठीक है। और ये जो है ये 3h दिया हुआ है,
3H दिया हुआ है, ठीक, ऐसा कुछ दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है, ठीक है सर ये सारी बातें दी हुई है। अब कहने का मतलब ये पॉइंट यहाँ तक, जैसे कई बच्चे सोचते हैं गलत तरीके से सोचते हैं, मैं बताऊँ आपको, ये पहले जो गलत सोचते हैं वो बताते हैं। ये पॉइंट अगर यहाँ तक उठ के चला जाए तो हमको पूरा दिखाई देने लगेगा। तो यानी कि यहाँ पे इसका अपरेंट शिफ्ट कितना होना चाहिए, h, तो अपरेंट शिफ्ट होना चाहिए h, ठीक है। और बोलते क्या है कि 2h इंटू म्यू माइनस 1, ये अपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला है सर। तो h इज इक्वल टू 2h म्यू माइनस 2h, सो दिस बिकम 2h म्यू इज इक्वल टू 3h। सो यहाँ से h कैंसिल हो गया तो म्यू बिकम्स 3/2। ये गलत है और ऑप्शन में ये अवेलेबल है, यू कैन सी 4th नंबर इज दिस वन, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कि आपका ये इतना उठेगा तो जाके आपको दिखेगा, नहीं। ये सारा कुछ जो आया भी हुआ है अगर, तो एंगल्स को बहुत छोटा मान के हम लोग लेके आए थे। जब साइन थीटा को टेन थीटा के बराबर इक्वेट कर रहे थे तब जाके ये सारा फॉर्मूला आया था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा मैं बताऊँ आपको। सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये कितना है 2h और ये कितना है 2h। मान लीजिए एंगल थीटा है, तो टेन थीटा कितना हो गया, टेन थीटा हो गया 2h अपॉन 2h दैट इज 1। और ये कब होता है ये घटना, जब थीटा 45 डिग्री होता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है। तो थीटा 45 डिग्री है, ये छोटा तो है नहीं, तो यानी कि ये कंसेप्ट तो हम यहाँ कभी लगा ही नहीं सकते, इसलिए इसको भूल जाइए आप। इसके लिए कुछ पूरा बेसिक तरीके से आपको जाना पड़ेगा, पूरा बेसिक्स जाना पड़ेगा। यानी कि ये एंगल 45 डिग्री ध्यान में रखिए और तब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे कुछ ऐसे। हालांकि प्रॉब्लम है कुछ नहीं ज़्यादा, आप एक दो बार बनाएंगे तो आपको आ जाएगा, बट ठीक है। पानी को कितना भर दिया हमने 2h। अच्छा, हमने यहाँ पे जो 2h रखा था म्यू माइनस 1, ये 2h क्यों रखे थे, क्योंकि पानी 2h तक भरा हुआ है। इसलिए बच्चे सोचते हैं कि रियल डेप्थ ये हो गया, अब म्यू माइनस 1 लगा देंगे तो शिफ्ट निकल जाएगा और दैट इज़ बराबर h होना चाहिए। ऐसा नहीं है, गलत सोचिए, क्योंकि यहाँ एंगल छोटा मोटा है नहीं। तो इसके लिए हमको पूरा सोचना पड़ेगा अच्छे से। तो मान लीजिए ये 2h है और ये रॉड है, ठीक है। इस केस में ये हो गया डेंसर मीडियम में और ये देख रहा है रेयरर मीडियम से। तो रे का लाइट जो चल रहा था वो तो वैसे ही चलेगा, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। लाइट जो चल रहा था, पहले कैसा लाइट था, पहले था इधर में, देखिए ये यहीं से देख रहा है, ठीक है ना, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पानी भरने के कारण क्या हुआ है कि ये ऐसे मिलेगा इस जंक्चर पॉइंट पे। मुझे नहीं पता ये जंक्चर कहाँ पे है, बट मिलना तो इसको ऐसे ही है, ये दिस वन, ठीक है। ये ऐसे जाके, यानी कि ये अभी 45 डिग्री है, यू कैन सी ये अभी 45 डिग्री है। देखो ना, ये 45 डिग्री है तो ये भी तो 45 डिग्री होगा। तो ये 45 डिग्री, तो ये कितना 45 डिग्री। हाँ, ये क्या है हमको नहीं पता। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू और ये है 1, इसका रिफ्रैक्टिव एयर है ना, तो 1। ऐसा कुछ सीन तो कुछ ये है आपको, और पूरे बेसिक्स में घुसना पड़ेगा आपको। ये अब ये पूरा 2h है, ये कितना है हमको नहीं पता। मान लीजिए ये x है, ये क्या है x है, तो ये कितना है, ये है 2h माइनस x। इतना आपको सोचना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, करेंगे इसमें 1 इंटू साइन 45, 1 इंटू साइन 45 दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। पहली बात तो ये 1 इंटू साइन 45 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, ठीक। तो यहां से आप साइन आर निकाल लीजिए। साइन आर इज, ये हो गया 1/√2, तो साइन आर इज 1/μ√2। पहली फर्स्ट इक्वेशन तो ये है, ठीक। अच्छा, अब दोस्तों साइन आर क्या है, ये क्या है साइन आर। तो साइन आर देखिए ये है, मैं बताऊं आपको, ऐसा समझे। अब ये तो 2h दिया हुआ है ना, ये देखिए ये 2h दिया हुआ है आपको, इट इज गिवन टू यू, दिस इज 2h। ये लेंथ जो है ये 2h दिया हुआ है, ठीक है। तो हाँ करते हैं। tan r बराबर क्या होगा, tan r बराबर होगा x अपॉन, tan r बराबर होगा, देखिए हम यहां तक पहुंचेंगे, आप घबराए ना बिल्कुल भी, ये सवाल इत्मीनान से बनेगा। tan r बराबर x अपॉन 2h, x अपॉन 2h, ठीक है। अच्छा, अब x को क्या लिख सकते हैं, हाँ ठीक तो है, ठीक है। अब जब देखें ये 2h है ना, तो ये कितना है, ये पहले 3h था ना, तो ये तो अब h हो गया ना, बताइए।
दिस बिकम एच, दिस बिकम एच। अच्छा भाई, अच्छा, देखिए एक एक चीजों को ऑब्जर्व करके ही आएगा। ये निकल गया एच। अच्छा सर, बात तो सही है आपकी, ये तो एच है। उससे क्या होगा? तो सर ये अगर एच है तो ये भी तो एच होगा। कहना बात तो आपकी सही है सर, क्योंकि अगर ये एच है और ये 45 डिग्री है तो ये एच तो ये भी एच होगा। कैसे भाई साहब? तो tan 45 डिग्री 1 होता है, tan परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो मान लीजिए अगर ये y होता तो h अपॉन y होता, और ये वैल्यू 1 होता है तो h बराबर y हो जाएगा, मतलब y बराबर h, माने कि ये h है। तो सर ये h है तो ये कितना हुआ? ये पूरा 2h था, तो x बराबर कितना हो गया? h। ओ अच्छा सर, बातें ऐसी है तो आंसर है। हाँ, बातें तो ऐसी है भाई साहब। तो ये हो गया h अपॉन 2h, यानी कि tan r हो गया h 1 अपॉन 2। अगर tan r 1 अपॉन 2 हो गया दोस्तों, tan r अगर 1 अपॉन 2 हो गया तो tan r मतलब क्या है? ये p है और ये b है। मुझे इसे sin r निकालना है। sin r क्या होता है? p अपॉन h। तो p हो गया 1 और h कितना हो गया? तो रूट अंडर दिस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। दिस इज व्हाट 1 अपॉन रूट अंडर 5। ठीक है। नाउ फ्रेंड यू हैव टू पुट दिस वैल्यू टू दिस इक्वेशन। सपोज दिस इज 2, दिस इक्वेशन इज 2। नाउ पुट 2 in 1. If you put 2 in 1, you will have 1 upon mu root 2 is equal to 1 upon root 5. Okay, so in this way you can get a mu is equal to root 5 upon 2, and this is the answer. In this way you have to think for the whole scenario. This is a very good question. लिख लीजिए। Okay, so in this way its option number is 2. लिख लीजिए पॉज करके इसको। चलिए, now come to question number 30. Last question, question number 30. Question number 30. Question number 30. So in question number 30, if you see, an air bubble in a glass slab, mu is equal to 1.5 is 6 centimeter deep when viewed through one face of, okay, I think it is clearly visible now, yes. An air bubble in a glass slab, mu is 6 centimeter deep when viewed from one face and 4 centimeter deep when viewed through opposite face. Okay. What is the thickness of the glass slab? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ से क्या बोल रहे हैं? एन एयर बबल इज, हाँ ठीक है, मान लीजिए एयर बबल यहाँ पे है, ये सपोज दिस इज एट एक्स दूरी, रियलिटी में ऐसा ही है, और ये मान लीजिए वाई है। ठीक है, सच दैट एक्स प्लस वाई इज द थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसको जो दिखाई दे रहा है बेसिकली, जब इधर से देख रहा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, यहाँ लिख दे रहे हैं 1.5, तो ये इसको दिख रहा है 6 सेंटीमीटर पे, तो थोड़ा ऊपर ही दिखाई देगा 1.5 सेंटीमीटर। तो ये 1.5 सेंटीमीटर कितना नजर आएगा? ये कैसे लिखेंगे इस एक्सप्रेशन को कि 1.5 तो एपरेंट डेप्थ है ना, तो दिस 1.5 इज इक्वल टू x अपॉन 1.5। पहली बात तो ये है ना, रियल डेप्थ तो इसका x है, तो x अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट बिकम्स एपरेंट डेप्थ, दैट इज दिस वन। नहीं कितना दिख रहा है? 1.5 ही दिख रहा है ना इसको, नहीं सॉरी 6 सेंटीमीटर दिख रहा है, ये दिख रहा है 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर, मतलब दिस इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x कितना हो गया? 1590, मतलब 9.0 सेंटीमीटर। ओके, अब जब ये इधर से देख रहा है तो ये इसको नजर आ रहा है 4 है ना, या 4 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो रियल डेप्थ इसका y, तो y अपॉन 1.5 दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो दूसरे केस के लिए 4 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5, तो y इज इक्वल टू 15 चौका 60, 6.0, ठीक है। तो टोटल थिकनेस कितना हो गया, x प्लस वाई दैट इज 9.0 प्लस 6.0 दैट इज 15.0 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। सो इट्स ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Okay, so dear students, this is up to question number 30 I had discussed. I think so many problem you can solve after seeing this lecture. After that we will proceed further for up to question. I think this this exercise contains 51 question. Na? So for another set of question we will make another video. Okay, and you can also solve on your own. अगर आप 50 क्वेश्चन तक सॉल्व कर सकते हैं तो यू कैन प्रोसीड फर्दर, बट 30 तक तो आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। इसके आगे आप बढ़ सकते हैं तो बढ़िए, वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स इन नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो, ठीक है। सो तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।